Hi everybody, welcome to my channel RJ Studies. I hope you all are good and preparing for and studying for your judiciary exams, that is Rajasthan Judicial Services RJS. Right now we are discussing and continuing with the fundamental rights, right? अभी तक हमने आर्टिकल 17 to 18 कवर किया है लास्ट वीडियो में, और हमने जो एक हेडिंग है हमारी राइट टू इक्वालिटी, जिसमें 14 टू लेकर 18 तक आर्टिकल्स जो कवर होते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और आपको पुरानी वीडियोस के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. Today in this video we are going to discuss and start with Article 19. Basically Article 19 is covered under the head right to freedom, and all these right to freedom are covered under Articles 19 to 22, right? So in this heading we are going to discuss with Article 19 that deals with protection of certain rights regarding freedom of speech, right? This is the heading of Article 19. Basically I want to mention that for prelims articles heading is very important. You should know each and every article, right? तो आपको prelims में एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मार्क करने को आ सकता है. सो आप जो इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्री असेंबली, रेजिडेंस, right to move and settle in any part of the country, right to property which is an omitted right, and right to freedom of trade and occupation. All these rights are covered and heads are covered under Article 19. So basically Article 19 clause 1 के अंदर आपको A से लेकर G तक आपको provisions मिलेंगे, and clauses 2 to लेकर 6 तक आपको उन सब के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, राइट? तो हम एक एक जो कॉन्सेप्ट है, चाहे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, चाहे असेंबली हो गया, एसोसिएशन हो गया, इन सबको हम अलग अलग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और इनके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को डिस्कस करेंगे, प्लस द केस लॉज विच आर कवर्ड अंडर दिस आर्टिकल. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लेंदी वीडियो, तो आप अपना पेशेंस जो है बना के रखें और मेरे साथ अपनी स्टडी आर्टिकल 19 से रिलेटेड करते रहें, राइट? अब नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आर्टिकल 19. सो बेसिकली I have already mentioned that Article 19 deals with protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. So first is introduction. Clauses A to G of Article 19(1) guarantee to the citizens of India 6 freedoms. What are those 6 freedoms? Visualized of speech and expression, peaceful and peaceable assembly, association, free movement, residence, and practicing any profession and carrying on any business. All these rights are covered under Article 19. Reading further, these various freedoms are necessary not only to promote certain basic rights of the citizens, but also certain democratic values in and the oneness and unity of the country. Article 19 guarantees some of the basic, valued and natural rights in a person. It has been said that these rights are great and basic rights which are recognized. I hope this slide mentions the basic part, which is very easy to understand. So in the next slide, which are recognized and guaranteed as the natural rights inherent in the status of a citizen of a free country, but not absolute in nature and uncontrolled in operation. Basically, this part is mentioning that a person is guaranteed with a certain natural rights, and these rights are not absolute in nature and uncontrolled in operation. These rights are subject to certain reasonable restrictions, and as I have already mentioned, all these reasonable restrictions are mentioned under clause 2 to 6. So we are going to discuss in a very detailed manner. Reading further, all the rights do not stand on a common pedestal but have varying dimensions
and underlying philosophies. The freedoms guaranteed by Article 19(1) are not absolute, as no right can be. Each of these rights is liable to be controlled, curtailed, and regulated to some extent by laws made by the Parliament or the state legislature. Article 19 protects the 6 freedoms of an Indian citizen from state action, and violation of these freedoms by private conduct or an individual is not within its purview. This part is mentioning that Article 19 protects the 6 freedoms of an Indian citizen from the state action. So basically, fundamental rights which are available to a citizen are provided against the state, right? The state cannot make any law which infringes or affects the fundamental right of a citizen, right? So clause 1 we are reading and studying. Clause 1 is saying all citizens shall have the right. What are those rights? First, A, to freedom of speech and expression. This speech and expression is a very wide term. We are going to discuss this part in a very detailed manner, right? In our further slides, we are going to mention that right to silence, right to receive information, right to freedom of the press, right to communication. All these aspects, all these variables are covered under freedom of speech and expression. Next right which is available to a citizen is right to assembly, that is peaceable assembly and without arms. C, to form associations or unions or cooperative societies. Basically, this part, cooperative societies, is added by the 97th Amendment Act of 2011, right? D part is to move freely throughout the territory of India. E, to reside and settle in any part of the territory of India. F, right to property. This right to property I have already mentioned in my videos, in my earlier videos, right? कि this right to property, the amendment by which it is omitted, that is 44th Amendment Act 1978, Article 300A, right? यहाँ से इसे हटाकर आर्टिकल 300A में इसे प्लेस किया गया है, प्लस इन विच पार्ट, दैट इज पार्ट 12. दिस होल 3 things are very important from the prelims point of view. इससे आपके क्वेश्चन बनता है. सो जब मैंने आपको फीचर्स पढ़ाए थे फंडामेंटल राइट्स के, और जब कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ाए थे, तो वहाँ पे भी आपका मेंशन किया था कि हाउ दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, राइट. G is to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. All these 6 aspects and 6 rights are very important. These 6 rights are protected against only state action and not against private individual. As I have mentioned that these rights are only protected against the state action, so state cannot make any law which infringes and affects the fundamental right, and these rights are not available against any private individual. Basically आपको अपना बेयर एक्ट अपने साथ रखना है, and all these rights are mentioned in the बेयर एक्ट, so go with the बेयर एक्ट, right? So next slide में हम सबसे पहले डिटेल्ड में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए के अंदर कवर्ड है, प्लस इसकी जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्लॉज 2 में मेंशन्ड है, right? So we are going to study this aspect in a very detailed manner. So I am reading this for you. Freedom of speech is the bulwark of democratic government. This freedom is essential for the proper functioning of the democratic process. In a democracy, freedom of speech and expression opens up channels of free discussion of issues. Freedom of speech plays a crucial role in the formation of public opinion on social, political and economic matters. Freedom of speech and expression, just as equality clause that the article 14 mentions the right to equality before law.
So freedom of speech and expression is just as the equality clause and the guarantee of life and liberty has been broadly construed by the Supreme Court right from 1950. It has been described as a basic human right, a natural right, and the like. It embraces within its scope the freedom of propagation and interchange of ideas, dissemination of information which would help formation of one's opinion and viewpoint. Basically, this paragraph is very easy to understand that freedom of speech and expression is something which is the bulwark of the democratic government. Like a democracy must have this power and function. People of the country are free to express their views, public opinions, either on the social, political, or economic matters. Right? I hope this paragraph is clear to you all. Further reading. The Supreme Court held that the freedom of speech and expression includes the following. First, right to propagate one's views as well as views of others. Now we are mentioning that Supreme Court ने क्या held किया है कि भाई freedom of speech and expression क्या क्या include करेगा. First is that is right to propagate one's views as well as views of others. Second, freedom of press is included. Third, freedom of commercial advertisements. Fourth, right against tapping of telephonic conversations. Right to telecast, that is government has no monopoly on electronic media. Right against bandh, called by a political party or organization. Right to know about government activities. Freedom of silence, right against imposition of free censorship on a newspaper. Last, right to demonstration or picketing but not right to strike. All these aspects and all these points are covered under freedom of speech and expression. I hope till now this is clear. Next slide is mentioning one case under freedom of expression, that is Menka Gandhi versus Union of India, AIR 1978 SC 597. Bhagwati Justice has emphasized on the significance of the freedom of speech and expression in these words, right? Democracy is based essentially on free debate and open discussion. For that is the only corrective of government action in a democratic setup. सो बेसिकली भगवती जस्टिस जो है वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक अपना व्यू मेंशन कर रहे हैं दैट डेमोक्रेसी जो है वो असेंशियली किस पे बेस होनी चाहिए, फ्री डिबेट पे, ओपन डिस्कशंस होने चाहिए, ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, ठीक है. इफ डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, आपको एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है हमारी डेमोक्रेसी की, अब्राहम लिंकन के थ्रू दी गई है, that democracy is for the people, by the people and of the people. So the same line is mentioned here, right? If democracy means government of the people, by the people, it is obvious that every citizen must be entitled to participate in the democratic process, and in order to enable him to intelligently exercise his right of making a choice, free and general discussion of public matters is absolutely essential. So for a democracy what is important is एक general discussion होना चाहिए public matters के ऊपर, आपको अपना जो right है of making the choice या available होना चाहिए. This whole point is mentioning this thing only, right? अब हम particularly freedom of speech and expression के जो reasonable restrictions हैं उनको पढ़ने से पहले हम एक जनरल इंट्रो पढ़ेंगे. बेसिकली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते क्या हैं, आपको किस तरीके से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है. तो हम एक 2 से लेकर 6 क्लॉज जो है उनका पूरा एक होल एक जनरल डिस्कशन करेंगे हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का, कि क्यों हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं. So next point is mentioning the reasonable restrictions which are mentioned under Article 19 Clause 2 to 6.
Limitations, basically reasonable restrictions are the limitations which are imposed by Article 19(2) to 6 on the freedom guaranteed by Article 19(1)(a) to G, serve a twofold purpose. ठीक है, twofold purpose क्या है? Visualized. They specify that these freedoms are not absolute but are subject to regulation. Like whatever freedoms which are available to a citizen under Article 19(1)(a) to G, all these freedoms, right, are not absolute. These freedoms are subject to regulation. Second point, they put a limitation on the power of a legislature to restrict these freedoms. ये भी जो भी फ्रीडम्स आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, रेजिडेंस, मूवमेंट, इन सबको क्या होगा? लिमिट करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है. A legislature cannot restrict these freedoms beyond the requirements of Article 19(2) to 19(6). जो भी फ्रीडम्स आपको प्रोवाइडेड हैं वो किस अमाउंट तक और कब तक ही रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है? जो भी पॉइंट्स आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर 6 तक में मेंशन ये है, उन ग्राउंड्स पर ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, राइट. रीडिंग फर्दर, 3 significant characteristics of clauses 2 to 6 may be noted. अब 2 to जो 6 आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड हैं उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं. What are those characteristics? First, the restrictions under them can be imposed only by or under the authority of a law. No restriction can be imposed by executive action alone without there being a law to back it up. Right? सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही restrictions नहीं लगाएगा. All these restrictions are subject and under the control of the authority of the law. Second point, ये जो भी restrictions हैं, that each restrictions must be reasonable. Reasonable amount का restriction होना चाहिए. Third, a restriction must be related to the purposes mentioned in clauses 19 जो है आपका आर्टिकल, clauses 2 to 19(6), राइट. सो ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ये बेसिक और जनरल डिस्कशन था रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, पर्टिकुलरली हमारा जो फर्स्ट राइट है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे. अब जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, ये आपके फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आए थे. सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू दैट क्लॉज 2 स्पेसिफिकली मेंशंस द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. The state can impose reasonable restrictions on the exercise of the freedom of speech and expression. अब यहाँ पे आपके 9 पॉइंट्स मेंशन्ड है. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर इन 9 ग्राउंड्स पर ही रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. आपसे इन 9 ग्राउंड्स में से पूछ लिया जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाएगा कि क्या इन ग्राउंड्स पे आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, या फिर कोई अदर ग्राउंड आपको मेंशन किया जाएगा कि आप एक्सक्लूड करो या इंक्लूड करो, राइट. तो अगर आपको ये लर्न होंगे प्रॉपरली तो आप वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. So we are mentioning the 9 points. First is sovereignty and integrity of India. Second, security of the state. Third, friendly relations with foreign states. Fourth, public order. Fifth, decency. Sixth, morality. Seventh, contempt of court. Eighth, defamation. Ninth, incitement to an offense. All these grounds are very important to learn. आपको टिप्स पे होने चाहिए ये ग्राउंड्स, इससे आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक. नेक्स्ट स्लाइड में अब हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं उसका बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू साइलेंस ऑल्सो. सो हम इसका एक छोटा सा पैराग्राफ व्हाट वी आर सेइंग कि हम राइट टू साइलेंस कैसे
ले रहे हैं दैट द राइट टू स्पीच इम्प्लाइज द राइट टू साइलेंस. इट इम्प्लाइज फ्रीडम नॉट टू लिसन एंड नॉट टू बी फोर्स्ड टू लिसन. क्या आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपको किसी बात को सुनने का अधिकार है तो साथ में आपके पास ये भी अधिकार है कि आप किसी बात को नहीं सुने, नॉट टू लिसन, एंड यू शुड नॉट बी फोर्स्ड टू लिसन टू समथिंग, राइट. और आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको ये बात सुननी है. क्लियर हुआ? रीडिंग फर्दर, द राइट कॉम्प्रीहेंड्स द फ्रीडम टू बी फ्री फ्रॉम व्हाट वन डिजायर्स टू बी फ्री फ्रॉम. A loudspeaker forces a person to hear what he wishes not to hear. The use of a loudspeaker may be incidental to the exercise of the right, but its use is not a matter of a right or a part of the rights guaranteed by Article 19(1). Loudspeaker is very important, right? Very important in the sense क्या अगर कोई भी आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना होता है तो आप लाउड स्पीकर के थ्रू करते हैं, बट इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट. आपका एकदम अधिकार ही नहीं हो गया है, राइट. तो यहाँ पर यही चीज़ मेंशन है कि भाई अगर आपके पास किसी बात को सुनने का अधिकार है तो आप मना भी कर सकते हो. यू शुड नॉट बी फोर्स्ड टू लिसन समथिंग. तो आपके पास राइट टू साइलेंस का भी अधिकार है, राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन का भी आपके पास अधिकार है. सो द एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 19(1)(a has been held to include the right to acquire information and disseminate the same. It includes the right to communicate it through any available media, whether print or electronic or audio visual, such as advertisement, movie, article or speech, etc. This freedom includes the freedom to communicate or circulate one's opinion without interference to as large a population in the country as well as abroad as is possible to reach. आपके पास जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये राइट है कि आप इंफॉर्मेशन भी रिसीव कर सकें. और वो इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव कर सकते हैं? थ्रू दी अवेलेबल मीडियाज. एंड व्हाट आर दोज अवेलेबल मीडियाज? वेदर इट इज़ अ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑडियो विजुअल. ऑडियो विजुअल में क्या इंक्लूड कर रहे हो आप? एडवर्टीजमेंट्स बात कर रहे हो, मूवी बात कर रहे हो, आर्टिकल, स्पीच, all these are the sources of receiving the information in these days, right. Next slide में हम further deal कर रहे हैं that freedom of speech and expression के अंदर freedom of press भी mentioned होता है. So the freedom of press is regarded as a species of which freedom of expression is a genus. So main part is freedom of speech and expression, and all these aspects, whether it is right to silence, right to receive information, freedom of press, all are the species of the freedom of speech and expression. Got it? Reading further, thus being only a right flowing from the freedom of speech, the freedom of press in India stands on no higher footing than the freedom of speech of a citizen, and the press enjoys no privilege as such distinct from the freedom of the citizen. The Supreme Court has laid emphasis in several cases on the importance of maintaining freedom of press in a democratic society. The press seeks to advance public interest by publishing facts and opinions, without which a democratic electorate cannot make responsible judgments. Articles and news are published in the press from time to time to expose the weaknesses of the government. This leads at times to the suppression of the freedom of the press by the government. Basically, ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं आपको. स्टफ जो भी है आपको खुद ही पता है दैट यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आजकल जो भी आपको पता चलता है न्यूज़ के थ्रू ही पता चलता है, और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो जो भी फैक्ट्स, ओपिनियंस हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो पब्लिश होने चाहिए, वो सब आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको प्रोवाइड करता है, राइट. सो
ये जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़ आते हैं, जो भी पब्लिश होते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एक गवर्नमेंट की, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, इन सबको बताता है. सो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब इसके अंदर हम एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर हम एक केस लॉ भी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्रिंटर्स मैसूर लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1994 2 SCC 434. The Supreme Court retreated that though freedom of press is not expressly guaranteed as a fundamental right, it is implicit in the freedom of speech and expression. Like जो right है आपका freedom of press का, वो आपको अलग से mention नहीं है, ठीक है. ये implicit है. implicit मतलब implied है freedom of speech and expression के अंदर. Freedom of the press has always been a cherished right in all democratic countries, and the press has rightly been described as the fourth estate. जो प्रेस है आपका, फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो पॉइंट है, वो एक चेरिश्ड राइट है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, राइट. और ये एक फोर्थ एस्टेट की तरह माना जाता है. द डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ अ स्टेट आर जज्ड by the extent of freedom the press enjoys in that state. Next paragraph, the Supreme Court has emphasized that the freedom of the press is not so much for the benefit of the press as for the benefit of the general community. Basically सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है आपका, वो जितना बेनिफिट फ्रीडम ऑफ द प्रेस को नहीं करेगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट ये किसको करेगा, जनरल कम्युनिटी का. क्यों? बिकॉज द कम्युनिटी हैज़ अ राइट टू बी सप्लाइड विद इंफॉर्मेशन एंड द गवर्नमेंट ओज अ ड्यूटी टू एजुकेट द पीपल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज. ये गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि जितने भी रिसोर्सेज उसके पास है, उन सब से जो अपनी जनता है उनको एजुकेट करे, ठीक है, अपनी स्कीम्स के बारे में बताए, जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है वो सब उन तक पहुंचाए. सो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रिया हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्कीम्स के बारे में जानने का. क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट स्लाइड में हम जो आपका सेकंड राइट है, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात कर रहे हैं. फ्रीडम ऑफ असेंबली आपके आर्टिकल 19(1)(b) के अंदर मेंशन्ड है, प्लस इसके जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्लॉज 3 में मेंशन्ड है. So what right to assembly or freedom of assembly is mentioning that every citizen has the right to assemble peaceably and without arms. It includes the right to hold public meetings, demonstrations and take out processions. This freedom can be exercised only on public land and the assembly must be peaceful and unarmed. Assembly होनी चाहिए, लेकिन वो असेंबली कैसी होगी, पीसफुल होनी चाहिए, अनार्म्ड होनी चाहिए. अनार्म्ड मतलब आपके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए उस असेंबली के अंदर. आपके पास ये अधिकार है कि आप पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, प्लस डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हो. रीडिंग फर्दर, दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट, डिसऑर्डरली, riotous assemblies and one that causes breach of public peace or one that involves arms. This right does not include the right to strike. बेसिकली अगर आपके पास असेंबली करने का अधिकार है, लेकिन आपके पास राइट टू स्ट्राइक आपको अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ में हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ असेंबली के. क्लॉज 3 के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं. 2 ग्राउंड्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ असेंबली पर लगाए जा सकते हैं. फर्स्ट इज सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, थर्ड इज पब्लिक ऑर्डर, सेकेंड इज पब्लिक ऑर्डर. बेसिकली आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जैसे आपने यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 2 पढ़े हैं, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सेकेंड इज पब्लिक ऑर्डर. अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है कि वेदर द मोरालिटी पॉइंट और द डिसेंसी पॉइंट और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का जो पॉइंट है, वेदर ऑल दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ असेंबली, तो आपको वहाँ पे मार्क करना होगा उन ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट्स में से कि क्या क्या कवर हो रहा है
और क्या क्या नहीं कवर हो रहा है। तो आपको यहाँ मेमोराइज करना है इन चीज़ों को, राइट। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम सेक्शन 144 CRPC की बात करेंगे। CRPC, एवरी लॉ स्टूडेंट नोट्स दैट इट इज़ अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विच इज़ ऑफ 1973, राइट। तो आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली की जब आप बात कर रहे हैं तो आप इस वाले सेक्शन को मेंशन करें। व्हाट इट मेंशंस दैट अ मजिस्ट्रेट कैन रेस्ट्रेन एन असेंबली, मीटिंग और प्रोसेशन इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, annoyance or danger to human life, health or safety, or a disturbance of the public tranquility, or a right or an affray, right। बेसिकली एक मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार होते हैं कि वो एक असेंबली या मीटिंग या किसी प्रोसेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है, रोक सकता है। अगर वो असेंबली कैसी हो, अगर वो डेंजर कॉज कर रही है ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ को, सेफ्टी को, राइट, और जो आपका डिस्टर्बेंस कर रही है आपकी पब्लिक पीस को। क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट इज सेक्शन 141 IPC 1860। IPC इज आवर इंडियन पीनल कोड, जिसमें आपके सारे सेक्शंस और धाराएं मेंशन्ड है, कौन कौन सा ऑफेंस आपका लगता है। तो जब हम असेंबली की बात कर रहे हैं तो असेंबली कैसी होनी चाहिए? असेंबली मस्ट बी ऑफ 5 or more persons becomes unlawful if the object is। असेंबली कैसी होगी? 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की, और वो अनलॉफुल कब होगी? इन 5 पॉइंट्स में मेंशन्ड है। कब अनलॉफुल होगी? टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, राइट, कि अगर किसी लॉ और लीगल प्रोसेस को रेजिस्ट करने के लिए हो, एग्जीक्यूशन जो उसका हो रहा हो उसको रेजिस्ट करने के लिए हो, तो वहाँ पर वो असेंबली कैसी हो जाएगी? अनलॉफुल हो जाएगी। टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को फोर्सिबली ऑक्यूपाई करना चाहते हो तो वहाँ पर भी वो असेंबली क्या हो जाएगी? अनलॉफुल। नेक्स्ट इज टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। जब हम IPC डील करेंगे तब हम स्पेसिफिकली मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास वर्ड्स को वहाँ मेंशन करेंगे और उनका ऑफेंस के बारे में जानेंगे, राइट। D पॉइंट इज टू फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट। क्लियर हुआ। E पॉइंट इज टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल्स ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स। किसी सरकारी अधिकारी को आप जो उसकी लॉफुल पावर्स वो एक्सरसाइज करने के लिए बाउंड है उसको थ्रेटन कर रहे हो। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स एंड पॉइंट्स आर कवर्ड अंडर अनलॉफुल असेंबली, राइट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में हम थर्ड राइट आपका डील कर रहे हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपका 19(1)(c) के अंदर मेंशन्ड है, प्लस आपका क्लॉज 4 के अंदर आपकी इसकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड हैं। सो बेसिकली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को हम रीड कर रहे हैं that all citizens have the right to form associations or unions or cooperative societies. It includes the right to form political parties, companies, partnership firms, societies, clubs, organizations, trade unions or any body of persons. आपके पास राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन का आपके पास राइट है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स बना सकते हैं। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. It not only includes the right to start an association or union but also to continue with the association or union as such. कि आपके पास सिर्फ इसको शुरू करने का ही अधिकार नहीं है बल्कि इन चीज़ों को आप कंटिन्यू भी करें. It covers the negative right of not to form or join an association or union. प्लस आपके पास अगर आपके पास ज्वाइन करने का अधिकार है तो आपके पास ये वाला अधिकार भी है कि आप इसको ना भी ज्वाइन करें, नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन. नेगेटिव राइट भी आपको प्रोवाइडेड है. नेक्स्ट पैराग्राफ. अ लॉ एम्पावर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एन एसोसिएशन अनलॉफुल ऑन द ग्राउंड दैट सच एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ डेंजर टू द पब्लिक peace or interfered with the maintenance of public order or the administration of the law.
स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार प्रोवाइडेड है कि किसी भी एसोसिएशन को आप अनलॉफुल डिक्लेयर करवा सकते हो अगर वो एसोसिएशन आपकी पब्लिक पीस को अफेक्ट कर रहा है या फिर आपकी जो इंटरफेयर कर रहा है इन द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, या फिर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अफेक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं। तो 3 ग्राउंड्स के ऊपर हम फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फर्स्ट इज sovereignty and integrity of India, public order, morality। क्लियर हुआ? ये 3 पॉइंट्स आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आएंगे। रीडिंग फर्दर, subject to these restrictions, the citizens have complete liberty to form associations or unions for pursuing lawful objectives and purposes. However, the right to obtain recognition of the association is not a fundamental right. The Supreme Court held that the trade unions have no guaranteed right to effective bargaining and right to strike or right to declare a lockout. The right to strike can be controlled by an appropriate industrial law. ठीक है, आपके पास जब भी आप एसोसिएशन बना रहे हैं तो आपके पास राइट टू स्ट्राइक का आपके पास अधिकार नहीं है, प्लस आपके पास राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट। लॉकआउट जो टर्म है बेसिकली आपकी इंडस्ट्रियल और लेबर लॉज के अंदर आती है। ठीक है, तो आपके पास ये सारे अधिकार नहीं है, बस आप एक एसोसिएशन बना सकते हो एंड इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट स्लाइड में हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि आपका आर्टिकल 19(1)(d) के अंदर प्रोवाइडेड है, प्लस इसके जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपके क्लॉज 5 के अंदर हैं। So what is mentioned in this? This freedom entitles every citizen to move freely throughout the territory of the country. He can move freely from one state to another or from one place to another within a state. This right underlines the idea that India is one unit so far as the citizens are concerned. Thus, the purpose is to promote national feeling and not parochialism. बेसिकली आपके पास राइट टू मूवमेंट का अधिकार है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं या एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और ये जो वर्ड टेरिटरी है इसको हम ऑलरेडी आर्टिकल 1 to 4 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट? फर्स्ट, the interest of the general public. Second, for the protection of the interest of any scheduled tribe. Again and again I am mentioning this कि आपको ये reasonable restrictions जो हैं आपको जितनी भी freedoms हैं उनके आपको separately अलग अलग आपको learn होने चाहिए। इससे आपका prelims में objective questions बनता ही है, right? तो it should be on your tips. Next slide is further discuss बता रहे हैं हम that the entry of outsiders in tribal areas is restricted to protect the distinctive culture, language, customs and manners of scheduled tribes and to safeguard their traditional vocation and properties against exploitation. The Supreme Court held that the freedom of movement of prostitutes can be restricted on the ground of public health and in the interest of public morals. बेसिकली हम यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हम किसी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर अगर हम किसी आउटसाइडर की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि जो ट्राइबल एरियाज़ है और वहाँ के जो लोग हैं उनका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उनके वहाँ के कस्टम्स हैं, वो सब प्रिजर्व हो सकें, राइट? बाहर के लोगों का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आया। इसी वजह से गवर्नमेंट कुछ रीजंस की वजह से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को अफेक्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है प्रोस्टिट्यूट्स का, आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स। द बॉम्बे हाई कोर्ट वैलिडेटेड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय एड्स, राइट? बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये बोला है कि भाई आप जो भी पर्सन्स हैं जो एड्स से अफेक्टेड हैं उनके मूवमेंट को भी आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो।
रीडिंग फर्दर दैट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ टू डायमेंशंस. क्या क्या डायमेंशंस है? फर्स्ट इज इंटरनल. इंटरनल मतलब राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, and external, that is right to move out of the country and right to come back to the country, right? Article 19 protects only the first dimension. जो आपका आर्टिकल 19 है वो आपका सिर्फ इंटरनल वाला जो डायमेंशन है दैट इज राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री को ही प्रोटेक्ट करता है, और जो आपका सेकेंड डायमेंशन है दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, राइट टू गो अब्रॉड वाला जो राइट है वो आपका आर्टिकल 21 के अंदर कवर होता है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आई होप अभी तक आई एम एबल टू क्लियर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट टू यू पीपल, राइट. नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट राइट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, जो कि आपका आर्टिकल 19(1)(e) के अंदर मेंशन्ड है, और इसके भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्लॉज 5 के अंदर मेंशन्ड है. तो बेसिकली दो राइट्स हैं जिनके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपके क्लॉज 5 के अंदर मेंशन्ड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर. What it is saying that every citizen has the right to reside and settle in any part of the territory of the country. This right has two parts. First, that the right to reside in any part of the country, which means to stay at any place temporarily. किसी एक जगह पे temporarily आप stay कर सकते हो. The right to settle in any part of the country, which means to set up a home or domicile at any place permanently. प्लस किसी एक जगह पे आप सेटल हो सकते हो परमानेंटली, ठीक है, जहाँ पे आप अपना घर बना सकते हो. बोथ दीज राइट्स आर कवर्ड अंडर राइट ऑफ रेजिडेंस. दिस राइट इज इंटेंडेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स विद इन द कंट्री और बिटवीन एनी ऑफ इट्स पार्ट्स. दिस प्रमोट्स नेशनलिज्म एंड अवॉइड्स नैरो माइंडेडनेस. बेसिकली ये दोनों राइट्स जो हैं, जो भी रेजिडेंस के अंदर कवर हो रहे हैं, राइट टू सेटल का और राइट टू रिजाइड टेम्परेरीली का, ये क्या है आपका नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं. क्लियर हुआ? अब हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन्ड है. एक तो आपका इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक के रिगार्डिंग आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, प्लस आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब से जो आपका सेकेंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. ठीक है, अब हम इसका फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं दैट द सेम थिंग इज मेंशन्ड हियर विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जो अभी हमने मूवमेंट के अंदर डिस्कस करी थी, दैट द राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू रिजाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरियाज इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, language, customs and manners of scheduled tribes and to safeguard their traditional vocation and properties against exploitation. In many parts of the country, the tribals have been permitted to regulate their property rights in accordance with their customary rules and laws. The Supreme Court held that certain areas can be banned for certain kinds of persons like prostitutes and habitual offenders. From the above, it is clear that the right to residence and the right to movement are overlapping to some extent. Both are complementary to each other. These points are mentioned earlier and that is in right to movement also. So both these aspects will be covered under right to residence and right to movement. So both these concepts are overlapping to each other and Supreme Court ने बोला कि that both are complementary to each other. Clear हुआ? नेक्स्ट स्लाइड में हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका ओमिट हो गया है. आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस थिंग, तो हम इसको थोड़ा सा बस ये रीड कर लेते हैं कि भाई आर्टिकल 19(1)(f) जो है आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पहले इंडियन सिटीजन्स को गारंटीड था दैट द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी. और क्लॉज 5 के अंदर स्टेट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता था ऑन दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट. और 19(1)(f) एंड आर्टिकल 19(5) हैव बीन रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. और ये 300A के अंदर आर्टिकल में मेंशन है अभी प्रेजेंट में, प्लस इसका पार्ट 12 है. तो दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है.
Next right is freedom of profession, which is the last right, which is mentioned under Article 19(1)(g) plus clause 6 के अंदर इसके reasonable restrictions mentioned है, that all the citizens are given the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. This right is very wide as it covers all the means of earning one's livelihood. बेसिकली राइट टू प्रोफेशन का अधिकार सबको है कि आप अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए आप कोई भी ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन ये कर सकते हो, ठीक है। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के जो क्लॉज 6 में मेंशन्ड है वो फॉर एक ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। जो भी प्रोफेशन आप कैरी ऑन कर रहे हो वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए, जनरल पब्लिक को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। Further, the state is empowered to prescribe professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business. Clause 6 के अंदर ही आपके points mentioned है कि भाई state जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकता है कोई भी प्रोफेशनल और रीजनेबल टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपको किसी भी प्रोफेशन को कैरी ऑन करना है, राइट। जैसे हम लॉ की ही बात कर लें कि अगर किसी पर्सन को एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट आपको वर्क करना है तो यू शुड बी LLB परसुइंग, ठीक है। आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, राइट। अगर आप एज अ प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास LLM की भी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए आपके पास। सो ये सब जो है ये स्टेट बताता है कि आपको कोई भी प्रोफेशन और कोई भी ट्रेड या बिजनेस करना है तो आप है ना उस और किसी प्रोफेशन को कैरी आउट करो तो आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दैट कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज, दैट इज कंप्लीट और पार्शियल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट के अंदर फर्दर इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, दैट डज no objection can be made when the state carries on a trade, business, industry or service either as a monopoly, complete or partial to the exclusion of citizens, all or some only, or in competition with any citizen. The state is not required to justify its monopoly. ये पॉइंट ये मेंशन कर रहा है कि स्टेट अपने पास एक मोनोपोली रखता है कि भाई वो कोई भी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री चला सकता है। और वो ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री वो कैसे चलाएगा कि भाई वो ट्रेड जो होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट कर रहा है, कुछ सिटीजन्स को बेनिफिट कर रहा है या इन कॉम्पिटिशन विथ एनी सिटीजन है। तो स्टेट के पास ये पावर्स हैं और इसके रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया जा सकता है। Reading further, this right does not include the right to carry on a profession or a business or a trade or occupation that is immoral. State के पास ये right तो है, प्लस citizens के पास भी ये right है, लेकिन वो कोई ऐसा business नहीं करे जो कि immoral हो। Immoral in the sense trafficking in women or children or dangerous, that is harmful drugs or explosives, etc. The state can absolutely prohibit these or regulate them through licensing. तो इन सब चीज़ों को लाइसेंस के थ्रू स्टेट कंट्रोल कर सकती है। रीडिंग फर्दर, आर्टिकल 19(1)(g uses for expression visualize profession, occupation, trade and business. Their fields may overlap, but each of these expressions has a content of its own distinct from the others. ये जो सारी fields हैं, जो 4 points हैं, that is profession, occupation, trade, business, ये overlap कर सकती हैं, लेकिन इनका जो content है वो एक दूसरे से अलग होगा। एक और यहाँ पे बात मेंशन करने की है, दैट आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक ये आर्टिकल्स भी आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। तो आप लोगों को एक वर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क समझ लीजिए कि आपको 301 से लेकर 307 तक एक बार रीड आउट करने हैं आर्टिकल्स कि भाई उनमें क्या बात मेंशन है, राइट। नेक्स्ट के अंदर लास्ट स्लाइड जो है उसमें हम केस मेंशन कर रहे हैं, दैट इज बॉम्बे हॉकर्स यूनियन वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन AIR 1985 SC 1206।
what Supreme Court is saying. The Supreme Court ruled in answer to the claim of the hawkers that under Article 19(1)(g) they have a fundamental right to carry on their trade on public streets, that no one has a right to do business as to cause annoyance or inconvenience to the members of the public. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम हॉकर्स जो है, हॉकर्स यानी जो ठेला लगाते हैं लोग, ठीक है, वो डेली बेसिस के ऊपर एक जगह जो ठेला लगाते हैं, इधर सब्जी वाला हो गया या फिर आपका पाव भाजी वाला हो गया या पताशी वाला हो गया, इन सब के राइट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि भाई इनके पास फंडामेंटल राइट तो है अपना ट्रेड कैरी करने का ऑन पब्लिक स्ट्रीट्स, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, ये अनोयंस कॉज नहीं करना चाहिए और इनकन्वीनियंस कॉज नहीं करना चाहिए टू दी मेंबर्स ऑफ द public. Reading further, that public streets are meant for use by the general public. They are not meant to facilitate the carrying on of private trade or business. But the hawkers ought not to be completely deprived of their right to carry on trade. ये बात सही तो है कि भाई जो पब्लिक स्ट्रीट्स जो है वो जनरल पब्लिक के लिए हैं, ठीक है, लेकिन आप है ना हॉकर्स को भी कम्प्लीटली डिप्राइव नहीं कर सकते हो उनका राइट टू कैरी ऑन ट्रेड को. सो द कोर्ट डायरेक्टेड दैट देयर शुड बी हॉकिंग जोन्स इन द सिटी वेयर लाइसेंसेस शुड नॉट बी रिफ्यूज टू द हॉकर्स एक्सेप्ट फॉर गुड रीजंस. तो कोर्ट ये बोलता है कि भाई हॉकर्स के लिए भी एक हॉकिंग जोन होना चाहिए सिटी के अंदर जहाँ पे वो अपना ट्रेड कैरी कर सकते हैं, और स्टेट उसको किस तरीके से कंट्रोल करेगा, थ्रू लाइसेंस ग्रांट करके, राइट. आई होप आज का वीडियो आपको जो हमने आर्टिकल 19 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है आपको अच्छा लगा होगा. तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने कुछ गेन किया होगा आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है. और अगर आपको मेरा जो चैनल है उस पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ आपको सही अच्छी लग रही है, आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू हो सके और आपको नेक्स्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है जल्दी से मिल जाए. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, ठीक है. और वन मोर थिंग दैट आई हैव टू मेंशन इज़, मैंने आपके लिए अपना इंस्टाग्राम आईडी जो है डैट इज़ विनीता सैनी के नेम से वो ओपन कर रखा है. सो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और 2 to 3 प्रीलिम्स जो मैं डेली वहाँ पे पोस्ट करती हूँ आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. प्लस मैंने एक फेसबुक पे पेज भी क्रिएट कर रखा है डैट इज़ आरजे स्टडीज़ के नेम से ही है जो मेरे चैनल का नेम है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं. और आपकी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो सब पूछ सकते हैं, और आपको पुरानी वीडियोस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.